ਚੱਲਾ। परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਾਕਾਂ ਗਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਊਂਗਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਸ ਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 75 मतलब 75 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? ਸਭ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਕੁਟੁੰਬ, ਆਪਣਾ ਘਰਾਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਗਰ ਵਸਾਊਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਸਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਗਿਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। 99 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 99 ਸਾਲ। ਸੋਚੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾ? ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ 17 ਉਹਦੀ एक आयत ਨੂੰ लिखा, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब जवान ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ਹੁਣ सोचो कि 25 साल किसी व्यक्ति ਨੂੰ 24 साल हो गए चर्च आਉਂਦੇ ਨੂੰ और ਉਹਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ नहीं हुई है तक, ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ नहीं होया है तक, दुष्ट आत्मा नहीं गईਆਂ, बीमारियां नहीं गईਆਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਕਤ नहीं मिली, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ 24 ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾ? ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚੂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 24 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਐ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਪ੍ਰਭੂ 24 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਐ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਅਗਰ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ 24 ਸਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧ 24 ਸਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। जब तुसी कहो कोई व्यक्ति पास 24 साल हो गए मेरी हजे तक बीमारी नहीं गई, मैं तेन कहा भाई सिद्ध हो जाओ, तुसी की करोगे? गुस्सा करोगे कि नहीं? तुसी कहोगे पास जी 24 साल बाद तुसी अज मैनूं सिद्ध होण कहने आ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਊਗੀ? ਲੱਡੂ ਫੁੱਟਣਗੇ, ਐ ਜੰਪਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਬਰਾਹਮ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਬਰਕਤ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਅਬਰਾਹਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾ? ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ 24 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਰਕਤ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ 99 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ
सारा कुछ है फिनिश खत्म आ और किदा और तुसी कह रहे सिद्ध हो जा। आखिर की गल आ उन्होंने क्यों क्या सिद्ध हो जा। मैं लगातार इस विषय पर प्रेयर करनी शुरू की कि परमेश्वर मैनू यही मैसेज चाहिए इस ऐतवार देने के लिए। तो उस तो बाद मैं इनू इंग्लिश के विच लैके गया इस सिद्ध के वर्ड नू। तो जिद्दां मैं गूगल पर सर्च किया और ਇਹਦਾ मीनिंग निकलिया हिब्रू ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कढ़िया कि ਇਹਦਾ देखते की मीनिंग है। हिंदी ट्रांसलेशन की तो ਉਹਦਾ मतलब लिखा सी ब्लेमलैस। की निकलिया ब्लेमलैस। उन्हें कहा अब्राहम नू अब्राहम ब्लेमलैस हो जा। ब्लेमलैस मतलब तेरे ते कोई भी ब्लेम नहीं होना चाहिए। किन्हां नू समय लगती पई आ। हालेलुया। हुण अगर तुसी मान लो आए 24 साल मैं तुहानू कहां तुसी ब्लेमलैस हो जाओ, तुसी की करोगे? तुसी कहोगे 24 साल हो गए हजे तक तुहानू मेरे से ब्लेम ही दिख रहा तुहानू, हर संगाई तो कोई होई नहीं, 24 साल थोड़े नहीं। बाइबल से क्या प्रभु क्या सिद्ध हो जा। सिद्ध होने ट्रांसलेशन की गूगल पर लिखा ब्लेमलैस। ब्लेमलैस नूं फिर मैं हिब्रू दे विच लेके गया कि मेरी तह तक जाना कि आखिर कारण की आ। अपने एक बार नाल दे नूं हिला दो, देख लो सारे सुते पे आ। तैयार आ? तुहानूं पता तुहाडी बरकत कित्थे आ? वचन दे विच। अज मैं चाहुंदा परमेश्वर तुहानूं अपने वचनां दे नाल भर देवे। किन्ने लोग तैयार आ? हुण की होया? अब्राहम ने की किया? अब्राहम नूं परमेश्वर ने देखिया थोड़े जे जने बोले की क्या परमेश्वर ने। अगर तुहानू 24 साल हो जाए तुहानू प्रभु बोले सिद्ध हो जा, फिर की करोगे? फिर की करोगे? गुस्सा आऊगा? चर्च छड्डांगे? पास्टर नू छड्डांगे? रब नू फिटकारांगे? फिर तुर पांगे दूजे बने लोकां वांगू के नहीं? फिर देखना वा कि गल की है भाई, क्योंकि बाइबल च लिखिया परमेश्वर की हर एक योजना की साडे भले दिया। परमेश्वर की योजना वो लाइफ से बहुत बिग योजना लैके आ रहा सीगा, पर किते ना किते कोई प्रॉब्लम सी, वो सी सिद्ध दी। और जो सिद्ध नूं ट्रांसलेशन किया तो लिखा ब्लेमलैस। उस तो बाद ब्लेमलैस मैं हिब्रू, क्योंकि हिब्रू दे विच सब तो पहली बाइबल जो छपी सी वो किहदे विच सी? हिब्रू विच। हालेलुया। और जो तो बाद हिब्रू दे विच गया और वो बहुत सारे मतलब निकले जो इंग्लिश दे विच सीगे, और मैं इंग्लिश दे विच मतलब उन्हां नूं कढिया। उन्हां फिर एक एक इंग्लिश के मतलबां नूं फिर ट्रांसलेशन किया और बहुत सारे मतलब निकले जो मैं अज भी तुहानूं दसना चाहुंदा वां, क्योंकि ये वचन अज अब्राहम लई नहीं आ। अब्राहम सिद्ध हो चुका, वो बरकत लै चुका, सब कुछ प्राप्त कर लिया, प्रभु दे कोल जा चुका। अज ये वचन किहदे लई आ? अज दे अब्राहम कौन आ? हत्थ ते ला दो अपने। अज दे अब्राहम कौन आ? अज दे अब्राहम तुसीं आ। अज बरकत किनू चाहिदी आ? चंगाइयां किनू चाहिदियां? फैमिली उधार किनू चाहिए? क्योंकि अब्राहम दे सिद्ध होके पा के लै गया। फिर अज वचन किनू दसना सीगा? अज दे अब्राहम। आपां भी कई अब्राहम हैगे आ 24-24 साल हो गए, पर किते ना किते उन्हां दी हीलिंग रुकी पई आ। ते परमेश्वर अज उहिओ कारण देन जा रहा, तुहानूं उहिओ दस्सण जा रहा जो परमेश्वर ने अब्राहम दस्सिया। तुहानूं पता प्रभु ने अब्राहम नूं 99वें साल दे विच दस्सिया ते 100वें साल की सी बरकत आई सी। इसहाक ओहदे गोदी विच खेडदा पिया सीगा। खुश नहीं होए लगदे आपां ना? लगदी इदां ही तुहानूं भी बरकतां मिलनियां, तुसीं भी चुप जे कर जाना। हालेलुया। किसी का 10-12 साल का बंधन टुटा बेऔलादी का। मैं क्या तुसीं हुण अपने घर जो प्रभु तुहाडी गोदी च बरकत आ गई, तुसीं वो बरकत लैके गवाही दिती। एक काम करियो, जो सुखना सुखी हो तुसीं अपनियां, मेरे वाले एक काम करो कि प्रभु की महिमा लेकिन दसो। मैं क्या एक काम करियो, अपने महल्ले में टेंट ला के एक मीटिंग करा दिओ, रिश्तेदार सद्दिओ, रिश्तेदारों में दसो कि प्रभु ने देखो किन्ने साल का बंधन टुटा। कुछ समय बाद पता लगा किसी ने कहा नहीं मैं नहीं वो काम करना हैगा, मेरे को की पता खर्चा होना कि नहीं होना। मैं क्या 2 चाननियां तुहानूं लाउंदे पता नहीं किहड़ा खर्चा सी, ते जे किते जांदे ना किते झाड़ू फूकू वालियां को 20-25 हज़ार मंगते दे लेना सीगा। सच्ची है कि नहीं? चिमटे भी मारदे वो भी खा लेने सीगे, वाल भी फड़ के पुट दिंदे वो भी की कर लेने सी। ते मैं क्या एक काम कर दो भी बरकत मिलन दे, टेंट ला के 2-3 चाननियां ला लिओ, जे मन होगा चाह पानी पिया दो, कलीसिया बुलाओ, परिवार बुलाओ, सौंड एक बुला लिओ, 1500 रुपये का सौंड आउंदा, प्रभु की महिमा उहदे विच आपां करांगे। तो जवाब की आया कि मेरे को नहीं हजे, मैं पक्का नहीं दस सकती। देख लो तुसीं लोकां दा किद्दां खुदावंद बाद विच बरकत देवे। सोचो तुसीं एक दी कदर नहीं कर रहे, और वो भी एड्डा वड्डा बंधन। एक बार मैं सुनिया कि किसी बंदे बंबे तो सीगा, उन्हें वो किसी जगह पर जाता सीगा कि मैनू औलाद मिल जे, मैनू औलाद मिल जे, और औलाद मिल गई। उस तो बाद उन्हें जाके उत्थों दे व्यक्ति नूं पुछया जो वड्डा अहुदा वाला सी, कहना कि दसो इत्थे किहड़ी सेवा की जाए। कहना कि आपां इदां दा बनाउणा चाहुंदे आ, भवन बनाउणा चाहुंदे आ ते सेवा चाहिदी आ। कहंदे ओके तुसीं दसो मैनूं की सेवा। कहंदे कि जो आपां सेवा दसांगे तुसीं कर दोगे? कहंदे हाँ जी कर दांगे।
कहते जो भी बोलांगे कर देंगे, तुसी ना कि नहीं करोगे। कहते तुसी बस दसना वा, काम करना मेरा, क्योंकि मेरा मैं प्रभु ने बरकत दी है मैनू, जिन्हें भी बरकत दी है मैनू, मैं वो काम करूँगा। मैनू औलाद मिली, एड्डी वड्डी बरकत मिली जो मैं कभी पा नहीं सकता। हुण तुसी दसो, कहते इदा करो, एक ट्रक रेता का दे दो। कहते ठीक है, होर एक ट्रक बजरी का, होर एक ट्रक सीमेंट का, होर एक ट्रक सरिये का। वो कहते एक दी गल वड्डी, मैं भेज दिना। उन्हें लग्या शायद बंदा मजाक करन दिया। उन्हें 4 ट्रक भेजे और वो भी नवे। जो 4 ट्रक भेजे, समान लाया गया। उस तो बाद उन्होंने मालक ने फोन किया कि भाई समान लत गया, अपने ट्रक वापस लै जाओ। कहते भाई ये ट्रक वापस नहीं जाने, ये ट्रक भी मैं दान कर दिते हैं। कहना ट्रक भी दान कर दिते हैं। हुण तुसीं इन्हां नूं वेचना, वेच के रखो, जां इस्तेमाल करना तुसीं इस्तेमाल करके रखो, क्योंकि मेरी दौलत सी वो मैनूं मिल चुकी आ। और अज आप कहने एक 2-3 चानियां ला के रब दा ना ही कर लिओ, उहदे लई साडे कोल पैसे नहीं आ। सोचो कि लोगों की बुद्धि। ओके, किन्हां नूं वचन समझ आ रहा? हालेलूया। बाइबल दे विच लिखिया कि उन्हें प्रभु ने कहा सिद्ध हो जा। और उस तो बाद जो मैं उन्होंने चीज़ों वर्ड कढ़े कि ब्लेमलैस नूं मैं ट्रांसलेशन किया, और मुड़ के मैं हिब्रू दे गया और वो कुछ वर्ड निकले मैं जो तुहानूं दसना चाहुंदा। वो पहला वर्ड से इनोसेंट। इनोसेंट मतलब मासूम, बेकसूर ते बेगुनाह। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने अब्राहम नूं की क्या? मासूम हो जा, बेगुनाह हो जा ते बेकसूर हो जा। किन्हां नूं समझ लगती पई आ? और ये अज सानूं भी आ। अब्राहम ने वो काम कर लिया, उन्हें 1 साल की बरकत पा ली, जी 24 सालों नहीं बरकत पाई। रब ने दसिया, उन्हें कहा आ काम सी करने वाला। उन्हें कहा लो प्रभु मैं बेमासूम हो जाना। मासूम मतलब परमेश्वर दे इतना बिलीव करने वाला, खुदा दे वचना वाला, चलने वाला। बाइबल लिखा यीशु मसीह ने कहा अपने आप को छोटिया की कर दो, बच्चों की तरह कर दो। किदां कर दो? अपने आप को छोटे बच्चों की तरह। अज आप चर्च के कोई काम होए तो आप बजुर्गों वांगू बना लेने, कितना पैसा लगू थोड़ा जहा दे लेने, बाकी चुप करके बैठे रहने। पर कभी भी खुदा के कामों नूं अगे नहीं सी वाधे। सच है कि नहीं? पूरी चलाकी के उत्ते उतर जाते कि नहीं? पर परमेश्वर कहता कि अपने आप को किदां कर लो? छोटे बच्चे की तरह। जो कोई भी खुदा का काम आता अपने आप को हमेशा परमेश्वर के बच्चों वांगू जस कहने वाले बोलना, ना कि परमेश्वर नाल चलाकियां करने वाले। क्योंकि अज बहुत सारे लोग है जो खुदा नाल की करते हैं। सच है कि नहीं? वो बहुत ज़्यादा चलाक आ, बहुत ज़्यादा दिमाग में कुछ बने होंगे और ढीठ मंदे बने होंगे। पर परमेश्वर चाहता कि मासूम हो जान। खुदा दे अगे सानू ऐदा ही मासूम बन के की करना पऊगा, चलना पऊगा। किदां चलना पऊगा? खुदू को मासूम जो खुदा दा वचन है उन्होंने ऐसे तरीके नाल फॉलो करना। ये नहीं करना कि मैनू इतों की मिलूगा भाई, ये वचन मैं पूरा करूँ, मैनू कोई फायदा हो कि ना हो। अरे ज़्यादा लोग की सोचते हैं, इो सोचते कि नहीं? सचा कि नहीं? दसो मैनू सचा कि नहीं? कि यार इतों मैनू कोई फायदा हो कि नहीं हो, और मैं कोई इतने काम करा आपे बाकी कलीसिया वाले कर लेने, मैं चुप करके आराम नाल बैठा रहना चुप करके। पर परमेश्वर चाहता सीगा कि अब्राहम की बन जाए मासूम, बेकसूर, बेगुनाह। हालेलुया। उस तो बाद सीगा अगला सीगा, थोड़ा मैनू इंग्लिश हो सकता मैं कोई गल थोड़ा हो जाए, पर मैं तो पूरा मतलब दसूँगा। लिखा सी गिल्टलैस। गिल्टलैस मतलब कि निष्कपट और निरअपराध। किदा मतलब? निष्कपट, ਉਹਦੇ अंदर कोई भी तरह का किया कपट नहीं होना चाहिए। और दूजा नंबर से निरअपराध, ਉਹਦੇ अंदर कोई भी तरह का किया अपराध नहीं होना चाहिए। अज असी देखना कि आप वाकई निष्कपट है, साढ़े अंदर कोई कपट तो नहीं, ना परमेश्वर के घर नूं लैके, ना चर्च नूं लैके, ना प्रभु के दास नूं लैके, ना अपने फैमिली मैंबरों नूं लैके, ना अपने रिश्तेदारों नूं लैके, ना अपने आंढ गुआंढ नूं लैके। अज बहुत सारे लोग जो चर्च जाने पर कपट नाल भरे होंदे आ। सच है कि नहीं? चुगलियां नाल भरिया, ईर्खा दे नाल भरिया, विरोध नाल भरिया, और पूरी तरह कपटी बने होंदे आ। और किस तरीके नाल बरकतां मिलन गया। और इसे करके प्रभु ने कहा सिद्ध हो जा, और सिद्ध हो जा विच सारा कुछ शामिल सीगा जो तो मैं दस रहा अज। यानी कि बहुत कोशिश, सिर्फ मैं कुछ लिया वा ताकि जल्दी जल्दी दस सका। उस तो बाद सीगा इनकल्पेबल। इनकल्पेबल और यदा मतलब सी दोषी, कि परमेश्वर चाहता सीगा कि अब्राहम किसी भी प्रकार नाल दोषी साबित नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अज इदा ही परमेश्वर सानू चाहता कि सानू कितों भी दोष ना आए। कई बार बहुत सारे लोगों की आत्मा खुद उन्होंने दोष दे रही होंगी आ, क्योंकि उन्होंने पता होंगे चर्च से आए आ पर बीड़ी सिगरेट तंबाकू लगा के, चर्च से आए आ रात को प्रेयर करनी सी पर रात को माड़ियां चीज़ां देख के आया। उन्होंने आत्मा उन्होंने खुद दोषी साबित कर दिया। सच है कि नहीं? आ चर्च से आया, किसी नाल लड़ के आया, किसी को गालां कढ़ के आया, काम तो कर रहा पर किते ना किते चोरियां भी कर रहा। जिस मालक नाल काम कर रहा उस मालक के प्रति वफादार नहीं आ, वो भी किते ना किते उहदे कोल तनख्वाह भी लै रहे हैं, तो किते ना किते उन्होंने पंजा भी मार रहे हैं। किन्हां नूं समझ लगती आ?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਬਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਲਈ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਲਾਸਾਂ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਾਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੜਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨੇਵ। ਨੇਵ ਮਤਲਬ ਅਨਾੜੀ। ਨੇਵ ਮਤਲਬ ਅਨਾੜੀ। ਅਨਾੜੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਨਾੜੀ। ਬਸ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨਾੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੋਲਿਆਂ ਜਿਹੇ ਵਾਂਗੂ ਆਏ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਹੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਓਏ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਉੱਧਰ, ਔਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਅਨਾੜੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਅਨਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਿਨ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀਓ ਨਾਗਨਾ ਜਦੋਂ ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਅਨਾੜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੜਕਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਣਾ ਪਏਗਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਚਰਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਛੂਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਮੈਰਿਜ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਲਏ, ਜਾ ਕੇ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਅਨਾੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਬਣਾਤੀ ਆਈ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਬਣਾਤੀ ਆਈ, ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਤੇਰੇ ਹਨੀਮੂਨ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਨਾੜੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਨਾੜੀ। ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਐਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਪਈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹੀਓ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਹੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਨਾੜੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਨਾੜੀ? ਸੱਚਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ, ਸੱਚਿਆ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂ? ਅਨਾੜੀ। ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲੀ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ? ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੇਰੀ ਦੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾੜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਰਾਮ ਅਨਾੜੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਨਾੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭੋਲੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜਦਾ ਉੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਅਨਾੜੀ ਹੋਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਕ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਐਨ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੋਲ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ, ਸੰਪੂਰਨ, ਪੂਰਨ। ਬੋਲੋ ਪੂਰੇ, ਸੰਪੂਰਨ, ਪੂਰਨ।
मतलब ये भी कौन परमेश्वर अब्राहम नूं कहण दिया पूरा बन संपूर्ण बन पूरा पूरा बन। हुण सोचदा बंदा 24 साल हो गया प्रभु हुण अज आहो गल्लां कहणियां सी फिर भी कह दिंदे कि नहीं इन्ना साल दे रहा कि हुण तू मैनूं हुण दस रहा। परमेश्वर कहंदा हजे भी प्रॉब्लम आ तू पूरा नहीं तू विश्वास विच किते ना किते जीरो आ। अज भी तू रब दी ते सुणदा नाल दूजिआं दी भी सुणदा अज भी तू प्रभु दे विच अपने आप नूं बड़ा योद्धा विखाउंदा पर जदों तैनूं कोई नैगेटिव गल्लां बोलदा तू झट टुट जांदा वा। किन्हां नूं समझ लगदी पई आ हुंदा वा कि नहीं हानू 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 फीलिंग भी उदां दी फिर आउण लग पैंदी कि नहीं यार हाँ वाकई प्रभु इदां दे प्रभु ने किया ही नहीं यार जो ये भाई जां भैन कह रही वाकई ही तो फिर आप उदा दे बन जाते हैं और जिदे करके फिर खुदा नूं ये चीज़ां चंगियां लगदियां। प्रभु कहंदा पूरन कि इदां दे पूरे बनो कि तुहानूं कोई किन्ना भी गुमराह क्यों ना करना चाहे तुसीं एक भी उहदी एक भी गल तुहाडे दिल दिमाग च नहीं होनी चाहिए। हालेलूया एक भी गल इदां दी नहीं होनी चाहिए जो तुहाडे दिल दिमाग में आए तुहानूं गुमराह कर दे। तो इत्थे इसे करके लोग गुमराह हो जाते हैं अपनी हीलिंगां तो रुक जाते हैं अपन ब्लैसिंगां तो रुक जाते हैं। हालेलूया जो मैं अपने पासे जी कोल स्टार्टिंग दे विच आया सीगा मैनूं हीलिंग चाहिए सी मैं देखिया कि कई चर्च के लोग जिहड़े सीगे वो पास्टर साहब दियां मतलब जिद्दां ही पहला प्रेयर कराई जानी पास्टर को आ भी दुखदा ओ भी दुखदा आ भी दुखदा आ भी दुखदा ऐ प्रेयर करा ली फिर थल्ले जाके 5-4 इकट्ठे हो गए यार पास्टर इत्थों गल तो चंगा नहीं हैगा। फिर 5-4 इकट्ठे हो गए यार आ सिस्टम नहीं चंगा हैगा और मैं सुनना यार आ की गल्लां वा। फिर उन्होंने कहना कि कलीसिया खराब कर दी है पास्टर दी। फिर उन्होंने कहना कि होर 5-4 बंदे लो इनू भी इदां दसो उन्नू भी चुगलियां उन्नू भी चुगलियां। मैं देखना यार उत्तों तुसीं वचन सुन के थल्ले ढाणियां जिहियां बना लियां ते खिलाफत भी किहदी करन डे ओहदी करन डे जिहदे कोल तुसीं प्रेयर करा के आए आ ओहदी खिलाफत करके आ जिहदी प्रार्थना जिहदी मेहनत नाल तुहाडी जिंदगी च बंधन टुट रहा और उस तो बाद लोगों को उन्होंने की करना कलीसिया नूं गुमराह करना तो जड़ा तो उस समय मैं और मैं कभी उन्होंने गल नूं कल दे विच सुनना भी हामी भरना तो बड़ी दूर की गल सुनना भी नहीं चाहता सीगा और कभी उन्होंने नज़दीक नहीं जाना। क्यों क्योंकि अपने आप नूं पूर्ण बना के की करना वा रखना कि वह काम तो करना ही नहीं आ पर जिथे चुगलियां आउणियां उत्थे भी नहीं भाई मैं जाना भावें वो इसे चर्च दियां क्यों नहीं हो रही भावें उस चर्च का मैंबर मैं भी क्यों नहीं आ पर जिथे बुराई चलन दी भाई उत्थे नहीं मैं जाना। तो अज कोई लोग हुंदे आ हाँ ऐ पहुँच के प्रेयर च भावें ना जान चर्च के टाइम से ना जान पर जिथे कोई इदां दी नैगेटिव गल होई है ना उत्थे पूरा जाना कि की गल हुंदी पई आ भाई मैनूं भी थोड़ा दसो मैं भी थोड़ा तुहाडे विच शामिल हो जावां ढाणियां दे विच। इसे करके परमेश्वर कहंदा पूर्ण हो किसी दे गल्लां दे मगर ना लग नैगेटिव ना हो कोई चुगलियां करन दे उन्हां दे विच भी ना जा अपने आप नूं पूर्ण बना के रख। हालेलूया पवित्रता च पूर्ण संपूर्ण प्रार्थना संपूर्ण वफादारी से संपूर्ण अपने चरित्र दे विच गुड करैक्टर दे विच संपूर्ण। और फिर देखो परमेश्वर दी बरकतां फिर किद्दां लाइफ दे विच काम करदियां अज भी बहुत सारी रुकावटां हुंदियां जिन्हां दे करके बरकत नहीं पाउंदे। हुण देखो परमेश्वर उहदे नाल गल्लां करदा सी अब्राहम दे नाल गल्लां देखो परमेश्वर ने उहनूं खुद नूं भी बुलाया कि आ मेरे पिछे मैं तेनूं खुद वादा कीता तेनूं इन्नी बरकत दूंगा कि आसमान के तारे किन्ने इन्नी तेरी अंश होगी जिहदे कोल एक भी बच्चा नहीं सी। पर बुंगा समुंदर के कंढे ते रेत किन्नी पई आ इन्नी दो गिलना जे इनू गिलेंगा तो अपनी औलाद गिल लूँगा तारियां नूं गिलेंगा तो अपनी औलाद गिलेगा कहंदा इन्नी प्रभु ते बरकत एक भी नहीं। 24 साल हो गए वादे दे वादा प्रोफैसी ते प्रोफैसी पर पूरी नहीं हुई और प्रोफैसी करने वाला कोई पास्टर नहीं भविष्यवाणी करने वाला डायरैक्ट गॉड सीगा खुद खुदा सीगा पर फिर भी पूरी नहीं हो रही 24 साल तो पूरी नहीं हो रही। इदां कई बारी पास्टर प्रेयर कर रहा पर हीलिंग नहीं हो रही उन्होंने लगता यार पास्टर के मसा घट आ हीलिंग पावर घट आ ये पावर है नहीं लगता गल तावें हो रही आ पर कभी अपने आप हुण दोस्तों पास्टर से दोष लगा लांगे कि रब च भी आप कह सकते हैं कि यार लगता रब च पावर घट आ रब को लगता मेरा इन्ने साल का बंधा नहीं टुट पा रहा 2-2 4-4 साल वाले छेती टुट जाते आ वाले नहीं टुटते। सोचे जिन्हें एक का बोलिया आसमान बन जाए आसमान बन गया धरती बोल जो धरती बन गई तो फिर वो की वड्डा काम सीगा पर प्रॉब्लम गॉड च नहीं सी प्रॉब्लम किते ना किते सी अब्राहम च। हालेलूया उस तो बाद लिखा सी होनेस्ट होनेस्ट मतलब ईमानदार सच्चा ते सत्यावादी बोलो ईमानदार सच्चा ते सत्यावादी अपने है गुण दसो बोलो ईमानदार सच्चा ते सत्यावादी। अब तो पास्टर जी ना भी झूठी बोल देंगे आ सच्चा कि नहीं कि वो मैं चर्च आना सी मैनू रोक लिया मैनू रोक लिया और फिर पता नहीं बहुत बार सोचो झूठ बोलते हैं दूसरे के नाल की होगा तो किद्दां फिर खुदा के सामने आप बरकत लैण दे लई कह सकते हैं ना। प्रॉब्लम साडी लाइफ में आउंदियां
परमेश्वर चाहता सी कि अब्राहम ईमानदार बने, फिर सच्चा बने, फिर सत्यावादी मतलब पंजाबी च किदां सच्चाई ते चलने वाला बंदा, ऐ पूरा खड़ा बंदा। चलो होर अगे जाते आपां। अगे लिखा सी सिंपल। सिंपल मतलब हिंदी में सरल, आसान, सादा। परमेश्वर चाहता सी कि अब्राहम दा लाइफ स्टाइल किदां दा होवे, एक सिंपल, एक सादा, सादा और सरल। मतलब खुदा दे नाल ओहदा रिश्ता एक इदां दा आसानी नाल चलने वाला होना चाहिए सीगा। ओहदी प्रेयर लाइफ इदां दी होनी चाहिए सी कि कभी भी प्रेयर लाइफ ऐ प्रार्थना करने वाला बन जाता, खुदा दी आवाज़ आउंदी ऐ सुन के चलने वाला बन जाता। अज भी आपां खुदा दे वचन नूं सुनदे आ पर कभी भी अपने आप नूं खुदा दे वचन अगे झुकाउंदे नहीं है, सच आ कि नहीं? आपां उदां ही अपने आप नूं टाण के रखदे आ कि चलना दे भाई मैं अपने तरीके नाल ही आ, फिर अपने तरीके नाल चल के आपां बरकतां किद्दां लवांगे? तुहानूं पता जदों मैं अपनी चंगाई लई जलंधर आया, मेरा सारा कारोबार उत्थे, परिवार उत्थे, घर उत्थे, इत्थे ते सिर्फ अपने अंकल जी घर। और मैं जिद्दां ही आया मैनूं प्रभु ने कहा फास्टिंग कर, प्रे कर, इदां कर, जिद्दां कर, सब कुछ किया। लास्ट में प्रभु ने कहा उससे वापस नहीं जाना, वो घर अपना बेच दो, अपनी फैमिली इत्थे ले आ। सोचो औखा लग गया हर एक बंदे नूं कि यार आ किदां दी गल हो गई, प्रेयर करनूं ठीक है, चर्च आउण ठीक है, दरियां सौण ठीक है, सारे काम करनूं ठीक है, पर इत्थे आ जाना क्योंकि प्रभु की प्लैनिंग सी। और उस तो बाद मैनूं पता सी मैनूं हीलिंग चाहिए सी, ते रब की गल मनण तो बिना ते भाई गल नहीं बननी। मैं घरदिआं नूं फोन किया, अपना सारा कुछ वेचो वापस आ जाओ। घर दे भी सोचो मैं प्रॉब्लम च, मैनूं थोड़ा लगा घरदिआं नूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहंदे कि इदां किदां हो सकदा, इत्थे ना कोई कमाई ना कोई घर, इत्थे किराए ते की करांगे। मैं कहा अगर तुसीं मैनूं प्यार करदे आ जाओ, नहीं करदे ते रह जाओ, पर अगर मैं इन्हां दे घर रहा चंगा ते हो जाना, फिर कल नूं जो कमाया मैनूं दे देना ते मैं इन्हां दे पुत्तर बन जाना। देख लो हुण मर्जी ढाडी आ, क्योंकि मैं इस समय फसिया पिया वां, मैनूं हीलिंग चाहिए आ, ते जिहड़ा बंदा मेरे नाल इस समय खड़ा हो गया तो मैं तो उहदा ही बनना वा मुश्किल दे विच। ओके, उस तो बाद घर दे सोच लग पे भी ठीक है पुत्तर यार देनी तो पैना टाइम, पर घर विच ना औखा। हुण जदों घर विच आंगे पहलां पूरे पिंड ने कहना की होया भाई फलान टमकान, फिर उन्होंने भी कहना लै इत्थे ही ते पास्टर है कि इत्थे ही प्रेयर करा लो, इन्नी दूर जाके घर वेचण ते इदां दी किहड़ा सुनिया। पर हर एक बंदा खुदा की प्लैनिंग नहीं जानता। किन्ने नूं समझ लगदी आ? अज खुदा की प्लैनिंग ते आपां किन्ने जाने बच गया कि नहीं प्रभु दे विच? ताली तो वजनी चाहिए, बचे आ ताली बजा दो प्रभु दे लई, खुश नहीं होए। बट आई प्रॉब्लम होंदी आ, प्रभु चाहता सी सरल आसान सादा इदां दा बंदा बने कि खुदा की गल नूं सुनने वाला। पर बहुत सारे लोग सादे नहीं होंदे, वो खुदा की गल नूं सुनने वाले हुंदे ही नहीं आ। सच है कि नहीं? वो सुननी है ही नहीं, बस अपना काम कढाउणा भाई चर्च में जाके, बस इक्को काम है, काम कढाउणा, काम हो गया ठीक है, नहीं होया तो तद भी ठीक है। पर इसे करके लाइफ के प्रॉब्लम होती है। परमेश्वर चाहता है ऐसे लोग होण ऐ सुन के पूरा करने वाले। और उस तो मैं बाद मेरे घर दे आए जाके 2000 का एक निकाह दे कमरा पता किया, विच ही किचन दे विच ही बाथरूम, और समान भी वो सारा इक्को कमरे दे, दोवां तिन्नां कमरिਆਂ ਦਾ समान इक्को कमरे दे विच। और अगे कोई पता नहीं कि होना की अगे भाई, कि मैं भी प्रॉब्लम में, मैं तो खुद बिजनेस मेरा उत्थे, इत्थे मैं की करूँगा। फिर खुद मेरी आत्मिक फाइट चलन दी शैतान दे नाल, मम्मी और भैन सीगे और भरा मेरा बाहर काम करता सीगा, ते कमाउण वाला कोई भी नहीं सी, पर कोई परवाह नहीं की, बस खुदा ने क्या कर देना और कर दिता। और उस तो बाद चाहे कुछ भी होया खुदा सानू वधाउंदा गया, खुदा सानू वधाउंदा गया, सानू वधाउंदा गया, ते अज खुदा ने सानू इन्ना वधा दिता। पर अज आपां किदां दे आ? खुदा ने कोई गल की ना, खुदा तो ज़्यादा तेज आपा होना कि पहला मैं देखना खुदा की गल मन्ना कि ना मन्ना। जे मनूंगा आ प्रॉब्लम होनी आ, छड्डो पर यार अपना मन चले कित्थे, फिर सारा कुछ प्राप्त करांगे। परमेश्वर चाहता सी कि अब्राहम भी इदां दे बंदे, चल रहा सीगा प्रभु के पिछे, 24 साल हो गए सी, पर हजे उदां नहीं सी चल रहा जिद्दां प्रभु चाहता। और अज आपां दे विच भी इदां दे कुछ हो जाता कि नहीं? चल रहे हैं, 10 साल हो गए जी चर्च जांदे, 15 साल हो गए, पर अज भी बीड़ी नहीं छड्डी, अज भी तंबाकू नहीं खाना छड्डिया, अज भी बुरियां संगतियां जाना नहीं छड्डिया, अज भी गंदियां गल्लां करनियां छड्डियां ने, अज भी गंदे गालां कड्ढनियां नहीं छड्डियां, अज भी लड़ाइयां करनियां छड्डियां, अज भी बुराइयां करनियां नहीं छड्डियां, अज भी माड़े काम नहीं छड्डे। फिर इहदा मतलब हजे भाई तेरा चलना कोई भी नहीं आ, तेरा 24 साल वेस्ट आ। 24 साल की आ कोई बरकत नहीं, 1 साल ही वधिया अब्राहम चलिया, 1 साल दे विच इहने 100 साल की बरकत लै ली। अज लोग कहते ओ मैनू इन्ने साल हो गए मेरी तो चंगाई हुंदी ही नहीं चर्च च। फिर चर्च टोलते आपां, भाई चर्च नहीं टोलना, अपने आप नूं किनू टोलना? अपने आप नूं टोलना। ये दुकान नहीं आ कि इत्थे लूण मिर्च नहीं मिलिया तो अगली दुकान ते लूण मिर्च होऊगा, इत्थे भी उही खदावा ते दूजे जगह ते भी की आ उही खदावा, उत्थे भी उही वचन, उत्थे भी उही वचन। बस चैक करना ते अपने आप नूं कि लाइफ चैक करा। ओके अगे वधिया सी, किन्ने लोग वचन सुनते आ?
ਅੱਜ ਐ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਕਲੀਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹਿਬਰੂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਬੜਾ ਬਲੈਸ ਯਾਰ, ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਕਹੇ ਚੱਲ ਵੀ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਵੇਚਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿਖਾਓ, ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਰਸੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟਾਂਪ ਸਟੂਮ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਕੋ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਓਕੇ ਆ, ਓਕੇ ਇਦੂ ਬੈਸਟ ਆ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 24 ਸਾਲ। ਓਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ, ਉਤਪਤੀ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਗਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ 10 ਤੋਂ 20 लिखा, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। कितने लोग सुन रहे आ? किन्ना नूं समय लगन दी है? सिंपल है सारा कुछ, औखा तो नहीं। जिथे प्रभु ने रखा से उन्होंने कनान देश में लिखा उत्थे अकाल पिया, बिना प्रभु तो पुछया, उन्हें कोई प्रभु ने पुछया प्रभु इत्थे रवां जां ना रवां, अपनी मर्जी ने कहंदा ओह मिस्र देश च जांदे आ, उत्थे अनाज वधिया। हुण उत्थे चला गया, जान दिया ते उन्होंने पता लगा कि ओ यार मेरी पत्नी तो बड़ी खूबसूरत आ, ते मैं जान कित्थे डिया बगाने देश विच। हुण जांदा जांदा उन्होंने की कह रहा, कहंदा सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे जे उसकी पत्नी है, जे अब्राहम की पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जिंदी रख लेंगे। अब तू जे कहना कि मैं उसकी बहन हूं। की कहता, तू लोगों को की कही जाके कि मैं अब्राहम दी भैन वा मैं, क्योंकि जिन्हें पता लगे पति आ, तो हुण पति होंदे ते किसी नूं अपना पति बना नहीं सकते पत्नी। उन्होंने की करना सी, अब्राहम नूं कहंदा भी मैनूं ना मार देना, तेनों अपनी पति बना लेना, तो तू इदा करी, तू कही कि मैं की इहदी भैन आ, उन्हें कहना भैन ही आ, चलो कोई नहीं फिर इनू विआह लो। क्योंकि जो पुराने समय में ऐसा होंदा सीगा, क्योंकि जो जिस देश के ज़्यादा लोग होंदे सी उन्हां दी मन मर्जी चलती, जिहदे लोग थोड़े से उन्हां दी नहीं सी चलती, क्योंकि उन्होंने पता था इन्हां दे यार एड्डा वड्डा देश आ, साडे ते थोड़े जे 100 लोग आ, 1 लाख बंदे दे नाल आपां लड़ सकते नहीं, लड़ांगे तो की हो जाएगा, मर जावांगे। इस करके उहदी लाइफ दे विच की सी, झूठ सीगा। और अगे अगे मैं तुहानूं थोड़ा बस पढ़ के दसदा। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्री ने उसकी पत्नी को देखा कि वे अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर राजे के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वे स्त्री राजे के घर में पहुंचाई गई, और फिरौन राजे ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, उसको भेड़ बकरियां, गायें बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट दिए। परंतु परमेश्वर ने राजा और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब राजा ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वे तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वे तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर जहां से चला जा
और राजे ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। किन्हों समय लगा कि सचमुच सी कि नहीं। और राती मैं 12 ਵਜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਸੈਚਰਡੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਚਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮੰਗੀ ਗਿਆ, ਲੰਮੇ ਪਿਆ 12 ਵਜੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ, ਮੰਗੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਇਆ ਵਚਨ ਕੱਢ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕੱਢਿਆ और ਜਦੋਂ मैं पढ़िया मैं क्या परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तो मैंने दस दिता कि अब्राहम की वाकई कितों गलती सीगी। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब बड़ा की आ, ਇਹਦਾ मतलब आ कि अब्राहम किते ना किते पूरी तरह प्रभु 'ਚ विश्वास नहीं सी। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 10-20 ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੇ। मैं क्या प्रभु तुसीं मैं जलंधर लिया, मैंने दसो सी मैं करना की आ। मैं अपना काम घर छड्ड दिता, घर दे भी लैन ते तुसीं कहा इत्थे आ जाओ, मैं इत्थे भी आ गया। हुण मैनूं दसो इत्थे आके मैं करना की आ। हुण मैनूं पता नहीं सी करना की है। मैं फिर सोचा यार मैं फास्टिंग करदा, लगातार प्रभु को जाना। मैं 10 फास्टिंग, 20 फास्टिंग, 15 फास्टिंग, 30 फास्टिंग, कभी 40 फास्टिंग कुंडी ला देनी। फिर भी मैनूं पता लगा कि करना की आ मैं अगे, कि प्रभु मेरी लाइफ भी जान दी आ, जवानी की उम्र आ, हो पता नहीं लग रहा करा कि प्रभु। मैं चंगा तो हुण हो चुका। फिर प्रभु ने कहा शायद 10 दिन के लगातार फास्टिंग कर। 10 दिन की जो फास्टिंग की और उस तो बाद 10वां दिन सीगा, मेरी मम्मी भी प्रेयर कर रही सी कि परमेश्वर मेरा बच्चा 10 दिन रोजे रख के कमरे में वड़िया, और मैं जो 7वां दिन 5वां दिन आना, मैं बाहर आना, लत्तां मेरियां पूरियां चीसां मार रही होनियां, सिर तो लैके पैरों तक जिहड़ियां नाड़ियां सी पूरियां, जो भुख हुंदी ना, भुख की मरे बंदे की जी फीलिंग से मैनू पता लगता है कि ऐ शरीर दर्दा ना करता। मेरी एक मामे की बेटी सी साड़ी करिंदी, मैंने कहना शैली इधर आ, मैंने कहना दसो पा की करना। मैं कहना मेरे पैरों तो लैके सिर तक चढ़ जा, दूँ लत्तां ना बस नप्पी आ, मैनू उन्हें नप्पी आना, मैनू फिर आराम आना, नहीं तो दर्द मेरी करनी। उन्हें कहना पा तेरे किन्ने के फास्ट रहिंदे आ कि जो ही मैं बाहर आना उन्हें मैं लत्तां को टंडा देना, सिर भी उन्हें कहना सिर ते भी चढ़ जा मेरे, थोड़ा मैनू अच्छा लगे। फिर जो 10वां दिन से उस मम्मी ने भी प्रेयर की कि परमेश्वर मेरे बच्चे ने अज गल कर, उन्होंने दस कि प्रभु तेरी योजना की हुआ कि तू बुलाया वा, परमेश्वर तू दस। जो 10वां दिन निकलिया, मेरे नाल प्रभु ने गल की, मैं बाहर निकलिया, मैं घरदियां नूं बड़ा खुश हो के ऐ लाटरी निकली वड्डी सारी। मैं क्या प्रभु ने मेरे नाल गल की, कहते खुश हो गए, वधिया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने हुण मर्जी प्रगट कर दी, कहते की मर्जी आ। मैं क्या प्रभु ने कहा कोई काम नहीं करना, मेरी सेवा करनी। सारे चुप हो गए, कोई काम नहीं करता। उस समय मैं खुश क्योंकि रब ने गल की थी, पर मैनू भी कि यार कोई काम नहीं करूँगा, इदा सारा कुछ पैसा ढेला कितों, पर जिदा ही खुदा की मर्जी से सचमुच उदा मैं चलना शुरू कर दिता। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम, पैसे नहीं होने। कई बार जो मैं अपने अंकल जी ने बंदगी जाना, हम पास्टर उसी दान उन्होंने देना, मैनू थोड़ा, तो उस समय मैं कई बार कहना प्रभु ने पैसे की जरूरत है, तो इदा ही कई बार किसी के मन में प्रभु ने खोल देना, उन्हें मैनू दान दे देना। पास्टरी तो चुप चपीते कि आला भाई लै ला तू अपने, मैनू प्रभु ने कहा। मैं कहना कि नहीं पास्टर जी तुसीं उन्होंने दो, कहते नहीं सानू प्रभु ने कहा। मतलब प्रभु इदा मदद करता गया सचमुच खुदा की मर्जी नाल उदा ही किया चलिया। क्यों? क्योंकि खुदा ने की कीता सी, बिलीव कीता सी कि वह सब दियां जरूरतां पूरियां कर सकदा, मेरी भी की कर सकदा, जरूरत पूरी कर सकदा। तो अज उहिओ व्यक्ति आ जिन्हें बिना काम तो अज तुहाडे सामने खड़े आ, ब्लैस होए लोग आपां। आज सिर्फ प्रॉब्लम की आ विश्वास की कमी। इस जगह पर अब्राहम से विश्वास की कमी सी। वो अपनी पत्नी को कह रहा सी तू कह देना भैन आ मेरी, और यदा मतलब कि वह खुदा ते भी पूरी तरह बिलीव दे विच नहीं सी कि खुदा नूं बचा सकता, खुदा की रक्षा कर। और एक बार नहीं, मैं होर भी तुहानूं वचन दस सकदा क्यों, बार बार ऐसियां गलतियां जिद्दां ही वो चलदा सी, बार बार कई सारे वचन खुदा ने दिते मैनूं। और मैं एक होर तुहानूं दस देना, उत्पत्ति उहदा 20, खुदा ने बहुत सारे दस्सिया कि देख इत्थे ते देख इत्थे ते ओहदी लाइफ विच आ प्रॉब्लम। उत्पत्ति 20 उत्पत्ति 20 लिखा, फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कदेश और सूर के बीच में ठहरा और गुरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा
वे मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेल के दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। मतलब उस तो बाद भी फिर दूजी जगह ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾ, ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 24 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, 1 ਸਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 20 ਹੋ ਗਏ, 30 40 ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਫੋਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 100 ਬਹਾਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ 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 ਓਕੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਭੋਗਣਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ? ਰੱਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਬਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਸ ਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡੇ? ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਫੈਮਿਲੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਭੈਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਰਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੂਰੇ ਐਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ, ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਲ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਛੂੰਹਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤਿਆਰ? ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਏ ਨਾ, ਐ ਵਧੀਆ, ਤੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੀਲਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਰੁਕੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੇਮਲੈਸ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਾ ਲਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਾ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਾ ਲਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਣਨਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਣਾਇਆ ਨੇ 1 ਸਾਲ। ਸੋਚੋ 24 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 1 ਸਾਲ, ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਜਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ? ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬੋਲੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਊਂਗਾ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਹਰ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੂੰਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ हर कपटीपन खत्म करांगा, हर चलाकियों वाला आत्मा खत्म करेगा, झूठ वाला आत्मा खत्म करांगा, सच्चाई ते चलांगा, तेरे वचनां ते चलांगा। परमेश्वर सच बोलांगा लोकां नाल, तेरे दास नाल, तेरे लोकां नाल। प्रभु हर बुराई नूं लाम करांगा अपनी लाइफ विचों, हर कपट कढ देवांगा, हर चलाकियां हर चोरियां छड्ड देवांगा। प्रभु तेरे नाल सच्चाई नाल चलांगा, क्योंकि परमेश्वर तू ऐसे लोकां नूं लभदा वा जो तेरी मर्जी नूं जाणदे आ, तेरी प्लैनिंगां नाल चलदे आ। खुदावंद तेरी इच्छा नूं पूरी करदे आ। खुदावंद मैं तेरी इच्छा नूं पूरी करने वाला बन जावांगा। खुदावंद हर एक जन प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा नूं पूरी करने वाला बन जावांगा। खुदावंद तेरी मर्जी मेरे जीवन च पूरी होवेगी। खुदावंद मैं तेरे नाल वफादारी नाल चलांगा। खुदावंद मैं तेरे नाल सच्चाई नाल चलांगा। खुदावंद तेरी कृपा नूं अपने आप लाइफ च बना के रखांगा। खुदावंद
किसी प्राइन अपनी लाइफ से नहीं होगा मैं परमेश्वर, मैं तेरे हुक्म से चलांगा, तेरे वचना से चलांगा परमेश्वर, तेरी आज्ञाकारी में चलांगा। हर गंदगी, हर बदी, हर पाप, हर हरामकारी, हर व्यभिचार मैं अपनी लाइफ से खत्म करांगा, सच्चाई ना पवित्रता ना चलांगा खुदावंद। हर एक इंसान प्रार्थना करिए कि तुसीं चाहते हो परमेश्वर नाल चलना, अज वादा करो परमेश्वर नाल कि परमेश्वर जो अब्राहम 24 साल च नहीं कर सकिया, पर जिद्दां प्रभु ने तेरी गल नूं मन्निया वो 1 साल विच अपनी बरकत तू प्राप्त कर लिया परमेश्वर। खुदावंद अज मैं तैयार हाँ तेरी गल नूं मनण दे लई खुदावंद, जो मैं बीते समय विच तेरे नाल नहीं चल सकिया मैं अज वादा करदा वां मैं सब बन जाऊंगा, ऐसा तेरे नाल चलूंगा परमेश्वर। रबा रबा शबा रबा दा दा बा 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 रे बे 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 रिशा का दा दा बा रबा बा बा रबो रबा रा शगने बे दा रबो यंदा रबा रीता नमा दा दा बा शगने बा दा रबो शोदो रबो यंदा रबा रे बे ने गे रे बे गे रे बे रे बे रे बे रे बे खुदावंद तेरे वचन चलूंगा, तेरी हुक्म से चलूंगा परमेश्वर, तेरी आज्ञाकारी